Ek Samvad at Arunimankuran. Today we are in conversation with Dr. Neeraj Baheti. He's a consultant neurologist and epileptologist. We'll talk to him about epilepsy, what causes epilepsy, how it's treated, and what are some of the challenges that people have to deal with if they suffer from epilepsy. So welcome to this Ek Samvad, sir. Thank you so much for joining us. Namaskar. Thank you, ma'am. Thank you for the invitation. A word about Arunimankuran. This is an initiative for positive social change through self-development. The goal is greater well-being and happiness for all. At Arunimankuran, we believe that each person is unique and special in some way, that each person can make a difference, that each person can have an impact, and that's what inspires us to keep going. National Epilepsy Day is on 17th November. It's celebrated every year in India to raise awareness about epilepsy and also its impact on people, families, and society. The day was first observed by the Epilepsy Foundation of India and was established by Dr. Nirmal Surya. The aim of this day was to help needy people who are not able to afford treatment for the disease and also to bust myths surrounding epilepsy, create awareness around the symptoms and management of the disease. We are so lucky to have Dr. Neeraj Baheti with us. He is an MBBS gold medalist, MD Medicine gold medalist, DM Neurology and Fellowship in Epilepsy, Sri Chitra Trivandrum. He has a special interest in pediatric and adult epilepsy, epilepsy surgery, electrophysiology, critical care neurology, and he has 46 publications in national and international journals, 6 book chapters, which is absolutely amazing. Thank you so much, Doctor, for joining us, and a warm welcome from Arunimankuran to you. Thank you, ma'am. Thanks for the invitation. It's an honor and privilege to have you here. So let's start with the first question which comes to mind. What is epilepsy and what causes epilepsy? What is epilepsy? Epilepsy यानी कि मिर्गी. मिर्गी क्या है? मिर्गी ये एक ब्रेन की साधारण बीमारी है. मिर्गी में होता ये है, हम जीवित है क्योंकि बिजली की तरंगे हमारे मस्तिष्क में और हमारे शरीर में सब तरफ दौड़ रही हैं. ये गेटेड है, यानी कितनी कहाँ से कब निकलना है और कितने दूर जाना है, किस हिस्से से निकल के किस हिस्से तक जाना है, सुन रहे हैं तो कान से निकल के ब्रेन के उस हिस्से तक जाएगी. ऐसा बहुत स्पेसिफिक जगह से स्पेसिफिक जगह जाती है. मिर्गी में होता यह है कि अत्यधिक बिजली की तरंगों का निर्माण मतलब विदाउट एनी रीजन सडन हो जाता है, और ये बिकॉज ये बहुत ज्यादा होता है, अत्यधिक होता है, ये सब तरफ वो करंट्स इलेक्ट्रिक नर्व्स से वो स्प्रेड होती है, और जहां जहां पहुंचेगी उस तरह से उसके लक्षण आएंगे, और उसे हम जब वो जो दौरा आता है उसे हम मिर्गी का दौरा कहते हैं. और जिन लोगों को ऐसे दौरे बार बार बिना किसी रीजन के या कारण के अपने आप स्पॉन्टेनियसली आ जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं कि उन्हें मिर्गी की बीमारी है या वो मिर्गी बाधित है. ओके, तो वो क्या सिम्टम्स है एक्चुअली, एग्जैक्टली व्हेन डू यू क्लासिफाई इट एज एपिलेप्सी? ओके, जैसे कि मैंने कहा, ये बेसिकली शॉर्ट सर्किट है ब्रेन में, सिंपल लैंग्वेज में. किसी को भी कभी भी ऐसा हो सकता है, जैसे बहुत तेज बुखार हो गया बच्चे को, 104 हो गया, या एडल्ट्स में भी कभी कभी हाई ग्रेड फीवर हो गया, या सडनली बहुत जोर से कोई चोट लगी ट्रांसिएंटली, या मलेरिया हो गया जो सेरिब्रल मलेरिया रहा, तो ये अटैक किसी को भी आ सकता है. बट ये एक अटैक है, या कोई दवाई का ओवरडोज हो गया, शुगर लो हो गया, ऐसे कोई चेंज हुआ जो सडन था और वो जिससे ब्रेन में इलेक्ट्रिकल इंपल्स गड़बड़ हुई, तो ये एक बार हुआ, इसे हम कहेंगे एक मिर्गी का दौरा आया. बट मिर्गी की बीमारी नहीं कहेंगे, पर जिन्हें ये बार बार आ रहे हैं इन्हें हम कहेंगे कि इन्हें मिर्गी की बीमारी है और ये अटैक्स आ रहे हैं. तो ये बेसिकली किस तरह की मिर्गी रहेगी उसके ऊपर हम बताएंगे कि आगे, मतलब वो प्राइमरी या आंशिक मेरी फोकल मिर्गी है, यानी आंशिक मिर्गी है, या जनरलाइज एपिलेप्सी है. दोनों के थोड़ा इलाज और दोनों की चीजें अलग रहेगी, और उसके हिसाब से हम आगे उस पे एज ए डॉक्टर ट्रीटमेंट और ये सब करते हैं. ओके, तो वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस ये है कि क्या ये हेरिडिटरी होता है? जैसे मैंने कहा, ये ब्रेन में शॉर्ट सर्किट से हुआ, और मेजॉरिटी टाइम ये शॉर्ट सर्किट क्यों होता है, तो ब्रेन में किसी तरह की कोई चोट हो गई, तो
बहुत कम केसेस में ये जेनेटिक होता है कि पैदाइशी इलेक्ट्रिकल करंट्स ज्यादा बनाने का टेंडेंसी है, और वो बच्चों में ही रहता है बहुत तो, और बहुत सारे अदर प्रॉब्लम्स उसके साथ जुड़े रहते हैं। मेजॉरिटी केसेस में, यानी 100 केसेस में बोलूँ तो 90 to 95 केसेस में ये हेरिडिटरी नहीं होती है। 5% केसेस में 5% केसेस में हेरिडिटरी कैसे रह सकती है कि अगर आपको, जैसे हम कहेंगे ओके आपके घर में ब्लड प्रेशर है, ओके आपके पेरेंट्स को था क्या, ओके है, बट आपके पेरेंट्स को था इसलिए आपको 100% नहीं होगा। वैसे ही अगर एक पेरेंट को एपिलेप्सी है, जो स्पेसिफिक प्राइमरी जनरलाइज्ड एपिलेप्सी हम कहते हैं, अगर एक पेरेंट को है तो बच्चे में होने का चांस 5 to 6% के करीब होता है, 94 to 95% फिर भी नहीं होगा। तो इट इज वेरी वेरी लो। तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ स्टिग्मा एक्चुअली, कि वो किसी को है तो यस, एपिलेप्सी, मिर्गी ऐसी बीमारी हैं जिससे स्टिग्मा जुड़ा हुआ है, गलत भ्रांतियां, गलत फहमियां। आई मीन देर इज नो डिजीज इन entire medical science which is abused, which is stigmatized, which is discriminated as badly as epilepsy. So that's why we need an expert like you to dispel the myths. Yeah. Yes. Yeah, it is a disease with many myths, many myths. आपने एक बोला कि हेरिडिटरी, यस, एक मिथ है, ये कहीं बाहर का तो नहीं है। मेजर मतलब अब तो ठीक है, एजुकेशन लेवल, अवेयरनेस हैज गॉन अप, बट फ्यू इयर्स बैक इट वाज, हुआ मतलब कुछ तो बाहर का है, दे विल गो टू अल्टरनेटिव, बाबा, मंदिर, ये धागे, दावीज एंड एवरीथिंग, एंड देन फाइनली जब बहुत बिगड़ जाए तब देन दे विल कम टू अ मेडिकल प्रैक्टिशनर थिंकिंग कि कुछ तो प्रॉब्लम हो गया। लोग सोचते हैं एपिलेप्सी आ रही है मतलब मानसिक, दे आर मेंटली सब नॉर्मल, दे आर साइकेट्रिक। सो दैट इज, ये मन का या विचारों का प्रॉब्लम नहीं है, ये एक ऑर्गेनिक, यानी ऑर्गेनिक कारणों से हुआ है, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स की गड़बड़ से हुआ है। तो इट इज नॉट इक्विवेलेंट टू हैविंग मेंटल इलनेस या पागलपन। बहुत सारे मिथ्स है, जैसे आपने कहा कि बच्चों को तो नहीं होगा, छूने से तो नहीं फैलेगा, लोग बोलते साथ में खाना खाने से तो नहीं फैलेगा, हमारे दूसरे बच्चे को या हम उनके साथ रह तो सकेंगे, मदर है या फीमेल है तो लोग बोलेंगे इनके बच्चे होंगे क्या, होंगे तो नॉर्मल नहीं होंगे ना, कुछ इनको एबनॉर्मलिटी ही रहेंगे, वो मेंटली रिटार्डेड ही रहेंगे, उनको एपिलेप्सी रहेगी ही। ऐसे ऐसे इट इज ए डिजीज विथ मिथ्स, स्टिग्मा। जैसे किसी को फिट आ गए तो वो भी हम मतलब कहीं ना कहीं डिस्कशन में आए गए कि प्याज, चप्पल, चाबी, ये सब भी है इससे जुड़े हुए। हाँ, तो वो सब किस हद तक सही है? जैसे फॉर एग्जांपल आई रिमेम्बर हमने एक स्कूल में प्ले किया था, एंड उसमें वन कैरेक्टर, उसको मिर्गी का दौरा पड़ा तो यू नो वन शूज को जूता सुंघा दो, काइंड ऑफ अ थिंग, दैट्स व्हाट दे डिड। तो कैसे है ना, ये कल्चरल बिलीव्स हैं, एरिया के हिसाब से ये अलग अलग है, कहीं पे जूता, कहीं पे प्याज, कहीं पे चप्पल चाहिए, कहीं चाबी घिसना, कहीं कुछ और करना। बेसिकली जैसे मैंने कहा ये शॉर्ट सर्किट है, तो अगर ब्रेन में शॉर्ट सर्किट हुआ तो ब्रेन में ही प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है कि ये शॉर्ट सर्किट या इलेक्ट्रिकल स्पार्क्स बढ़ने नहीं दे, उसको कंट्रोल कर लें और बार बार नहीं होने दे। तो जैसे हुआ तो रोकने के लिए एक सराउंडिंग इनिबिशन आ जाता है, वो उसको रोकता है, धीरे धीरे वो सबसाइड कर देता है। तो ज्यादातर मिर्गी के दौरे स्टडीज में पाया गया है कि 2 से 2.5 मिनट में 90%, 95% मिर्गी के दौरे कंट्रोल हो जाते। तो हुआ ये होगा, किसी समय किसी ने प्याज लाया, सुंघाया, तब तक दौरा खत्म हो गया, या किसी ने चप्पल लाई, सुंघाई, वॉटेवर, मतलब जो अलग अलग चीजें की गई। फिर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, दूसरे से तीसरी, एंड देन इट इज डीपली इम्बाइब्ड कि हाँ ये करने से ही खत्म हुआ, अगर नहीं करता तो चलता रहता, ऑब्जर्व करते तो रियलाइज करते कि वो 2 मिनट में अपने आप वैसे ही खत्म होना था। तो जैसे एक जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर है, व्हेन समबडी इज विटनेसिंग एन अटैक, उसको क्या करना चाहिए? ये हम बात कर रहे हैं, जब भी मैं मिर्गी कहता हूं तो हमारे जहन में या माइंड में एक पिक्चर आता है कि कोई जमीन पे है, लेटा हुआ है, एंड ही इज कन्वल्सिंग, हाथ पैर फड़फड़ा रहे हैं, आंखें ऊपर घूम ली, दैट इज अ जनरलाइज सीजर। उसी में मेजर फर्स्ट एड का जरूरत पड़ता है, क्योंकि बाकी छोटे पार्शियल एपिलेप्सीज अलग होती हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये जनरलाइज सीजर में बेसिकली हुआ यह है कि बहुत बड़ा करंट आया और सडनली नाउ इट हैज स्प्रेड टू एवरीवेयर।
तो ही हैज बिकम अनकॉन्शियस। आदमी या जो भी मिर्गी बाधित व्यक्ति हैं वो अनकॉन्शियस हैं, आंखें ऊपर हो गई हैं। उसमें एक फेज आएगा कि जब वो आवाज करेंगे, शाउट करेंगे, एक आंखें ऊपर हो जाएगी, हाथ पैर पूरे खड़े करेंगे, दे विल जस्ट फॉल बैक आफ्टर दैट, एंड फिर वो जर्क्स करेंगे। तो हमें चाहिए कि एक करवट लिटा दें लेफ्ट में, प्रिफरेबली। मुंह से लार आ रही है तो निकलने दें, मुंह में कुछ भी नहीं डाले। बहुत बार जीभ जुबान कट रही हमें दिखता है और हमको लगता है मेरा नियर एंड डियर है, बेटा है, फादर है, वाइफ है, कोई कजिन है, वो जीभ कट जाएगी उसके, तो आई पुट माई फिंगर। उस समय वो बेहोश है, उसे कोई पेन की फीलिंग नहीं, कुछ नहीं। आप डालोगे तो इतना टाइट क्लेंचिंग है कि आपकी फिंगर कट जाएगी। आप चम्मच या कुछ मेटेलिक ऑब्जेक्ट या वुडन ऑब्जेक्ट डालोगे तो वो कट जाएगा, टूट जाएगा, गले में जाएगा, चोक हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, एक करवट लिटाना है। ध्यान रखना है कि जब वो जर्क कर रहे हैं तो हाथ और पैर को चोट नहीं लगे। सिर के नीचे, पैर के नीचे कुछ सॉफ्ट कुशन रखे या हाथ रखे। ग्लासेस वगैरह होंगे तो वो निकाल लें और साथ ही साथ में वॉच की तरफ ध्यान रखें। 2 सवा 2 मिनट में ये क्लोनिक जर्किंग वाला फेज खत्म हो जाता है। उसके बाद वो थोड़ा सा नींद की फेज में जाते हैं एंड धीरे धीरे रिकवर करते हैं। अगर ऐसा लग रहा है कि 3-4 मिनट हो गए और जर्किंग शुरू है तो इट इज अ टाइम टू गेट द इमरजेंसी हेल्प, शिफ्ट टू कॉल द एम्बुलेंस, गेट अ व्हीकल एंड शिफ्ट टू अ नियरेस्ट हॉस्पिटल। नजदीकी अस्पताल में इमीडिएट फर्स्ट एड के लिए जाए। ओके। हम लोग जैसे मूवीज में भी बहुत बार दिखाते हैं कि जो उसके मुंह चेहरे पे पानी डाल दो एंड ऑल दैट, तो वो सब कुछ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट वो लार आ रही है, निकलने दीजिए सलाइवेशन। इसलिए हम बोलते थोड़ा लेफ्ट लैटरल रखो कि मुंह से लार आ रही तो वो इसलिए कि वो ड्रेन हो रही होने दो, नहीं तो अगर उल्टा ही रहेगा तो वो गले में फंस जाएगी, सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी। मुंह में पानी डालना बोला ना, वो किसी भी चीज से नहीं, वो अपने आप ही खत्म हो रहा है। ओके। तो कितने टाइप के हैं, अलग अलग क्लासिफिकेशन क्या है? बेसिकली बहुत बार, जैसे अभी मैं एक और ये कहना होगा चाहूंगा कि हम बोलते हैं मिर्गी, कोई बोलता है नहीं नहीं हमको मिर्गी के अटैक नहीं है, ये तो चक्कर के अटैक है। चक्कर नहीं, चक्कर मिर्गी, मिर्गी और मिर्गी की तरह दिखने वाले कई बीमारियां हैं जो उस तरह की मिमिक करती हैं। तो जब भी कोई को किसी को ऐसा बेहोशी वाला दौरा आ रहा है तो सबसे पहले हमें चाहिए कि जिसने ये विटनेस किया वो डॉक्टर के पास जाए, वो खुद जाए, क्योंकि बहुत सारे सिंपल क्वेश्चन से हम जज करते हैं, क्योंकि वो तो हो चुका है। राइट। आज हम कुछ भी जांच करेंगे तो शायद हमें मिले रिजल्ट, ना भी मिले, क्योंकि ये तो एक दौरा था, उस समय हुआ। तो इसमें सबसे बड़ा डायग्नोसिस के लिए हमारे पास चैनल होता है, जिसने वो विटनेस किया सही ढंग से, उनसे पूरा हम डिटेल लें। तो चाहिए कि जब भी किसी को आपके नियर एंड डियर को आ रहा है तो या तो आप, आज के जमाने में हम कहते हैं वीडियो रिकॉर्ड कर लो मोबाइल ऑन करके, या ध्यान से देखो क्या हो रहा है। तो 2 मेजर टाइप होती है एपिलेप्सी की। एक हम कहते हैं जिसे जनरलाइज्ड एपिलेप्सी, और एक फोकल, या पहले पार्शियल कहते थे, यहाँ हिंदी में आंशिक मिर्गी कहेंगे। आंशिक मिर्गी में ऐसा है कि एक पर्टिकुलर हिस्से से निकला और करंट वहीं तक सीमित रह गया, सब तरफ नहीं फैला पूरी तरह से। तो अगर ये, इसमें कॉमनेस्ट टाइप होता है टेम्पोरल लोब, यानी बीच वाला हिस्सा जो लोब होता है, जिसका फंक्शन होता है, जिस हिस्से से निकलेगी उसका फंक्शन हैम्पर हो गया तो उसके सिम्टम आएंगे। बीच वाले हिस्से का फंक्शन है मेमोरी, स्पीच, लैंग्वेज, अवेयरनेस। तो टेम्पोरल लोब से होती है तो होता ही है कि वो ब्लैंक हो गए एक सेकंड के लिए, मुंह चला रहे हैं, चीविंग, इधर उधर कुछ पकड़ रहे हैं, कुछ बड़बड़ा रहे हैं, लॉस्ट लॉस्ट लाइक, या स्टैचू के जैसे जस्ट खड़े ही हैं बस एक सेकंड के लिए और ठीक हो गए। बहुत बार समझ ही नहीं आता पेरेंट्स को कि कुछ हुआ, बस वो बीच में ब्लैंक हो जाते हैं, वो बोलते हैं कि एब्सेंट माइंडेड है। जब तक बड़ा अटैक नहीं आया कभी पूरा वो स्प्रेड होके पीछे के ब्रेन से आएंगे, जिसे हम ऑक्सीपिटल लोब कहेंगे, तो विजुअल सिम्टम्स, वो विजन होती है वहां पर। तो कुछ लाल पीली झाई परछाई आएगी, कुछ इमेजेस आएंगी, कुछ हैलोज आएंगे, कुछ कलर्स आएंगे। ऊपर के हिस्से में हमारे मोटर और सेंसरी कंट्रोल्स होते हैं, तो वहां से आएगा तो एक हाथ में पूरी झुंझुनी झुंझुनी आएगी, वो चढ़ती जाएगी एंड देन पूरा अटैक आएगा। या एक हाथ में जर्क शुरू होंगे, मुंह टेढ़ा होना शुरू होगा, इस तरह। तो ये फोकल एपिलेप्सीज हो गई। जनरलाइज्ड एपिलेप्सी में मैंने कहा कि कभी कभी ये फोकल भी, पहले झुंझुनी आई, पेशेंट को समझा और उसके बाद बड़ा अटैक आ गया, तो ये भी जनरलाइज हो सकती है, पूरे अटैक में कन्वर्ट हो सकती है, जिसमें आंखें घुमा ली, हाथ पैर फड़फड़ाए, बेहोश हो गया। इसके अलावा प्राइमरी जनरलाइज में होता है कि एक ब्रेन के पास के नीचे के हिस्से से निकलती है और सडनली जाती है, तो उन्हें क्या होता है कि दे स्टार्ट विद दिस डायरेक्ट अप्रोलिंग पोस्चरिंग, तो इसे हम प्राइमरी जनरलाइज्ड एपिलेप्सी कहते हैं। इसमें भी काफी लोगों को बहुत बार इन अटैक्स के अलावा बीच में सडन जर्क्स आते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल करंट्स है वो ब्रीफ थे, तो ऐसा जर्क्स कि जैसे हम कुछ कर रहे हैं और सडनली जैसे एक पटाखा छूट गया तो हम हड़बड़ा जाते हैं। ये हड़बड़ाना, ये जर्क्स कॉमन होते हैं। तो ये प्राइमरी जनरलाइज्ड एपिलेप्सी या जुवेनाइल मायोक्लोनिक एपिलेप्सी कहते हैं।
एक बहुत क्लासिकल एपिलेप्सी है जो बच्चों में होती है और बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है और है ऐसी कि दवाई स्टार्ट करो और ये ठीक हो जाते हैं। ये बच्चों में चाइल्डहुड एब्सेंस एपिलेप्सी कहते हैं, जिसमें बच्चा लिख रहा है, टीचर कुछ बोल रही है, लिखते लिखते बस स्टक हो गया, चाहिए तो शायद थोड़ा आई ब्लिंक करेगा, थोड़ा सा आंख मिचमिचाएगा, हो गया चालू फिर से। तो बीच के 2 वर्ड मिस कर गया वो सेंटेंस के, या बोल रहा था कि दी कॉज ऑफ दिस इज सो इट इज लाइक दिस, सो बीच के 2 वर्ड मिस कर गया। टीचर बोली डे ड्रीम करता रहता है, आधा आधा लिखता है आधा नहीं लिखता। दिस इज अ क्लासिकल चाइल्डहुड एब्सेंस एपिलेप्सी। तो एक ये भी एक धारणा है कि बचपन में वो रहता है तो वो बड़े होके ठीक हो जाएगा। कैन यू हेल्प अस टू अंडरस्टैंड? एक तो 2 एज ग्रुप्स में कॉमन है, एक बाई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन हम कहते हैं इसका, एक बचपन में 1 साल से पहले और एक है 60s के बाद। बचपन में क्योंकि पैदाइशी कुछ इंजुरी है, बर्थ से कुछ इंजुरी है, जेनेटिक कुछ प्रॉब्लम्स हैं, और कोई बीमारियां हैं हार्ट की या जो भी केमिकल चेंजेस के कारण कोई मेटाबॉलिक बीमारी उससे फिट आई, वो कॉमन एज ग्रुप हो गया। या बर्थ के समय ऑक्सीजन की कमी से या फिटल डिस्ट्रेस हुआ, कुछ प्रॉब्लम हुआ तो। दूसरा है लेट एज ग्रुप्स, उसमें क्योंकि जिंदगी भर की जितनी भी इंजुरीज हुई वो ऐड हुई और एज के हिसाब से ब्रेन डिजेनरेट होने लगा और वो शॉर्ट सर्किट्स बढ़ गए। पर मैं कहना चाहूंगा बहुत बार मिडिल एजेड आते हैं, उनको एक एपिसोड आया उनको आने लगे, वो कहते हैं मैं तो इस ग्रुप का नहीं हूं, मेरे बच्चों को आती है। तो हम जिंदा है क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस अंदर से बह रही है। तो जो भी जिंदा है किसी भी एज ग्रुप का, मेल फीमेल एडल्ट चाइल्ड एल्डरली, किसी को भी एपिलेप्सी का अटैक कभी भी आ सकता है, और जिन्हें ब्रेन में कोई डैमेज होगा किसी कारण से उन्हें मिर्गी की बीमारी हो सकती है। एनीबडी, नोबडी इज अ बार फॉर इट। Okay. And is there any way to predict it? प्रेडिक्ट, नो, नोबडी कैन प्रेडिक्ट। यस, प्रेडिक्शन इन द सेंस कि अगर मुझे पता है कि किसी को, प्रेडिक्ट नहीं कहेंगे, हाई रिस्क ग्रुप्स होते हैं जिसको, जैसे मुझे पता है किसी को मैसिव हेड इंजरी हो गई थी, भाई गाड़ी चला रहे हैं हेलमेट नहीं पहन रहे हैं, फास्ट जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया, तो आज तो चोट हुई है, आज तो ठीक हो गया सब, पर एज ए न्यूरोलॉजिस्ट मुझे पता है मैसिव चोट हुई है, ही इज इनटू दैट हाई रिस्क कैटेगरी। तो ये जब सिंगल एपिसोड के बाद भी बाद में आते हैं या माइनर एपिसोड्स के बाद हम स्कैन्स करते हैं, एमआरआई करते हैं, हमें पता होता है, फिर मालूम पड़ता है ओके 5 साल पहले एक एक्सीडेंट हुआ था। तो इस तरह ब्रेन की चोट जिन्हें लगी है किसी कारण से, कोई ट्यूमर था, कोई पैरालिसिस का अटैक था, कोई ब्रेन क्लॉट था, कोई बड़ा ब्रेन इन्फेक्शन था, ये इन लोगों में थोड़ा प्रेडिक्शन ज्यादा रहेगा, बाकी तो एनीबडी कैन हैव। So, Dr. Arunim Ankuran believes in sowing seeds of change. So, I think मैं यहाँ पर I would like you to reassert this idea, कि लोगों को हेलमेट पहनना चाहिए. If it comes from you, हो सकता है सुनेंगे. मैं बोलता हूँ जैसे 3 चीजें, अगर मिर्गी का इंसिडेंस इंडिया से कम करना है तो 3 चीजें हेल्प करेगी। मैं सेल्फ डिसिप्लिन फॉर अ हेलमेट इन यंगस्टर्स, नॉट हैविंग अ ड्रिंक, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, डोंट बी अ रैश ड्राइवर। ट्रैफिक रूल्स हमारे लिए हैं, हमारी सेफ्टी के लिए है, किसी और की और हमारी जिंदगी खराब हो सकती है, ये फर्स्ट। सेकंड, पेरीनेटल मैंने बोला बच्चों में कॉमन है, तो पेरेंट्स का, ग्रैंड पेरेंट्स का ये होता है नहीं नॉर्मल ही डिलीवरी होना चाहिए, गायनेक बोल रहा है नहीं भी नॉर्मल हो नहीं सकती, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, या बेबी ने अंदर टॉयलेट पॉटी कर लिया है, या डिस्ट्रेस के सिंबल्स हमको सिग्नल्स दिख रहे हैं, नहीं नॉर्मल ही होना चाहिए। फिर वो नॉर्मल जब बेबी निकलता है वो पूरा लिम्ब पूरा साइनोज्ड है, तो अंदर अब कितना ऑक्सीजन कब तक नहीं गया, फिर 6 महीने बाद फिट शुरू होते हैं, फिर बच्चा रिटार्डेड रहता है, फिर वो जिंदगी भर गिल्ट पेरेंट्स को, मदर को चलता रहता है, क्योंकि शी वाज ओके विथ एवरीथिंग बट देन एवरीबॉडी वाज ओके, नहीं नॉर्मल ही होना चाहिए, क्योंकि सोसाइटी में पड़ोसी का नॉर्मल हो गया, किसी और का नॉर्मल हो गया। सो लिसन टू योर गायनेक, दे आर योर डॉक्टर्स, दे वांट यू एंड योर चाइल्ड टू बी सेफ। थर्ड कॉमन रीजन इंडिया में है वर्म्स। जैसे मैंने कहा कि किसी तरह की इंजुरी, तो इंजुरी में वर्म्स होते हैं, हमारे जो पेट के वर्म्स होते हैं ना, कभी कभी ये माइग्रेट हो जाते हैं और ब्रेन में चले जाते हैं, तो ये वर्म्स वहां एग ले करते हैं। अब ये एग्स तो पेट के लिए थे, एग्स में से वहां तो लार्वा हैच ही नहीं कर सकता, वहां से नया वर्म निकल नहीं सकता, तो एग वहीं पड़े रह जाते, फिर वो पड़े 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 एक डिसइंटीग्रेट होते, जब भी वो डिसइंटीग्रेट होगी केमिकल रिएक्शन होगी और वहां सूजन आएगी और फिट्स आएंगे। तो जो मैं कहता हूं कि जो स्वच्छ भारत अभियान हुआ है, दैट विल, एंड वी हैव विटनेस्ड इट लास्ट 10 साल में, जब से गुड
लोग बोलते हैं कि हम तो नॉनवेज खाते नहीं तो हमें वर्म्स कहाँ से आएंगे। वर्म्स नॉनवेज खाने से नहीं है, सलाड्स, जो कि सलाद विच हैज मिक्स्ड विद इम्प्योर वाटर, ड्रेनेज वाटर जो टॉयलेट से या फीकल इन कंटामिनेशन से हुए हैं, क्योंकि वर्म्स पेट से नीचे गए, वाटर कंटामिनेट हुआ, वाटर फील्ड्स में गया, सलाद पे गया, सलाद गंदे पानी में धो लिए गए और हमने वो कंज्यूम किए। तो रियली दिस रूरल मिशन ऑफ good hygiene, Swachh Bharat has helped. Last 10 years we have seen this cases of neurocystic हम कहते हैं इस वर्म को, उसके इंसिडेंट्स और उससे रिलेटेड एपिलेप्सी डेफिनेटली कम हो गई है। तो हमें चाहिए कि हम सलाद सही जगह से खाएं, साफ जगह पे हम प्याज सलाद ये सब खाएं, ध्यान हाइजीन का ध्यान रखें। ऐसा लग रहा है कि वो हाइजीनिक नहीं है तो बेटर टू अवॉइड सलाड्स एंड दोस सॉर्ट ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स व्हिच आर अनकुक्ड रॉ। So while we are talking about food, does diet have any connection? And if someone, tell us. डाइट नहीं, एक थे ये है कि देयर इज समथिंग कॉल्ड कीटोजेनिक डाइट, लो कार्बोहाइड्रेट हाई फैट डाइट। ये पीडियाट्रिक के केसेस में, जिनको पीडियाट्रिक एपिलेप्सी होती है, जो रेजिस्टेंट है, दवाई से कंट्रोल ही नहीं हो रही है, ऐसे केसेस में हम कीटोजेनिक डाइट ट्राई करते हैं। बाकी डाइट का कोई ऐसा स्पेसिफिक रिलेशन नहीं है। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ईटिंग एपिलेप्सी, बहुत बहुत छोटा सा ग्रुप है, उस पर हम ना ही डिस्कस करें, उसमें थोड़ा डाइटरी इन्फ्लुएंसेस होते हैं, बाकी कुछ नहीं। जिन्हें खाना खाते वक्त ही आती है एपिलेप्सी, वो भूल जाते हैं। अच्छा। बहुत रेयर है, मतलब एज ए एपिलेप्टोलॉजिस्ट मैं 2-3 साल में देखता हूँ, लोग बोलेंगे न्यूरोलॉजिस्ट मैं तो जिंदगी में एक ही बार देखा हूँ या कभी देखा ही नहीं, तो विल लीव इट। ओके, so when we talk about so many different types, you talked about 2 different types, तो उसकी जो एक जनरल आम आदमी के लिए एक बड़ा रेजिस्टेंस होता है कि नहीं मेडिसिन नहीं खानी है, अदरवाइज वो हमेशा खानी पड़ेगी। सो टॉक टू अस अबाउट दैट। मैं आपसे पूछता हूँ, किसी को आपके घर में ब्लड प्रेशर है तो वो कितने साल दवा खाते हैं? कितने साल खाएंगे बोलिए आप? आई थिंक लाइफ लॉन्ग, बिकॉज दैट इज व्हाट डायबिटीज हो जाए, अब ब्लड प्रेशर था, अब डायबिटीज हो गया, आप कितने साल? लाइफ लॉन्ग। अब हार्ट कार्डियक आ गया, आप कितने साल? लाइफ लॉन्ग। 20 की उम्र में भी हो गया, तो हमने कितने अच्छे से एक्सेप्ट कर लिया, बीपी है खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये क्रॉनिक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, ऐसा है। जब एपिलेप्सी वर्ड सुनते तो हमें लगता है ये तो बस ब्रेन का कुछ हो गया, अब ये कुछ हो ही नहीं सकता जिंदगी में। इतना बड़ा निहिलिज्म फैमिली में, सोसाइटी में, सब में आता है। अब जब इतना निहिलिज्म से स्टार्ट होगा तो लगेगा कि इसकी दवाई खाऊंगा तो मेरा ब्रेन काम करना ही बंद कर देगा, मैं स्लो हो जाऊंगा, मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। मैं खाऊंगा तो फिर इतनी सारी, या ये 2-2 दवाई मैं रोज खाऊंगा, सुबह शाम एक टैबलेट, ये हाई पावर की होगी, मेरी किडनी लंग लिवर फेल हो जाएंगे। तो मैं कहना चाहूंगा कि हमारे पास आज 16 से ज्यादा दवाइयां अवेलेबल है, सिंगल मेडिसिन से 60 to 70 और मे बी एक से ज्यादा 2 मेडिसिन से ऑलमोस्ट 80% लोग पूरी तरह से मिर्गी मुक्त रह सकते हैं। दे कैन हैव नॉर्मल लाइफ, सीजर फ्री लाइफ, अ प्रोडक्टिव लाइफ, क्योंकि अरे उन्हें वो 5 मिनट के अलावा तो आपके और मेरे जैसे ही नॉर्मल है ना। वो 5 मिनट साल भर बाद आए, 3 महीने बाद आए, उसके अलावा तो अगर 1 महीने में भी एक बार आया तो 29 दिन और कितने घंटे और 55 मिनट पूरे वो दिन के वो नॉर्मल थे, तो दे आर नॉर्मल। तो अगर सिर्फ एक गोली सुबह और शाम खा रहे तो वो एबनॉर्मल कैसे हो गए? तो ये गलत फहमियां जुड़ने से ही सब प्रॉब्लम्स हैं। अगर किसी को मिर्गी है, वो डॉक्टर की सलाह से बराबर दवाई खाते तो 80% चांस दे कैन बी सीजर फ्री। ओनली दे हैव टू डू इज डोंट मिस द डोज, दवाई बंद नहीं करे। बहुत बार होता ही है कि बुखार आ गया तो बुखार आया इसलिए बुखार की दवाई ली, अब ये दवाई लूंगा तो रिएक्शन हो जाएंगे। कभी हम ब्लड प्रेशर की मेडिसिन के लिए ऐसा नहीं सोचते नहीं खाऊंगा तो बीपी बढ़ जाएगा, वो बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, कब बढ़ेगा नहीं मालूम, इसमें तो तुरंत अटैक आएगा और मेजर कुछ कैटास्ट्रोफी होगी। तो किसी भी कारण से दवा बंद नहीं करें। आप कोई और दूसरा प्रॉब्लम आ रहा है तो डॉक्टर को बता दे कि मैं ये दवा ले रहा हूँ, वो उसी हिसाब से उनकी दवाई एडजस्ट करेंगे। एंड यू कैन, एवरीबडी, एनीबडी हु हैज एपिलेप्सी कैन बी लिविंग अ नॉर्मल लाइफ। सो what are the different modes of treatment? मैंने कहा ये दवाई that is a common 80% केस में it helps and it is successful। 20% में काम नहीं करती से हम कहते हैं ड्रग रेजिस्टेंट एपिलेप्सी। उसमें स्पेसिफिक एपिलेप्सी सेंटर्स, एपिलेप्टोलॉजिस्ट होते हैं जैसे कि हम करते हैं, तो उसमें एपिलेप्सी में सर्जरी करते हैं। मैंने कहा ये ब्रेन की चोट का लक्षण है, अब मुझे पता है यहाँ डैमेज हुआ है, फिर उसमें हम कुछ अलग टेस्ट करते हैं, वीडियो जी, MRI स्पेसिफिक टेस्ट करते हैं
और पता करते कि ओके इस डैमेज के एरिया हमको एमआरआई से समझ जाएगा कि इसी एरिया में डैमेज है। वीडियो ईजी में हम फिट्स रिकॉर्ड करते हैं, फिट्स के बीच के स्पार्क्स देखते हैं, स्पार्क्स भी यहीं से आ रहे हैं, फिट्स भी यहीं से स्टार्ट हो रही है, यही डैमेज का एरिया है। और ये डैमेज का एरिया अगर मैं निकाल दूंगा तो कोई नया प्रॉब्लम नहीं आएगा, इट इज नॉन इलॉक्वेंट, यानी वो निकालने से कोई वीकनेस नहीं आएगा, कुछ नहीं होगा। तो हम अंदर जाके वो मैप करते हैं और वो एरिया निकाल देते हैं, तो इट इज कॉल्ड एपिलेप्सी सर्जरी। तो ये जो 20% है ना, इनमें से 10% केसेस में, 10 से 12% केसेस में तो एपिलेप्सी सर्जरी से ऐसा है कि वो पूरी तरह रोग मुक्त हो सकते हैं, सीजर फ्री। एट द सेम टाइम कुछ सालों बाद इनकी दवाई भी बंद हो सकती है। तो ये सेकंड मोडेलिटी हुआ आफ्टर मेडिसिन। दोज हु आर नॉट ड्रग रेजिस्टेंट दे शुड नॉट, उन्हें उन्हें हताश होने की जरूरत नहीं, ये ऑप्शन है। फिर इसके अलावा कुछ कुछ और कीटोजेनिक डाइट, जैसे मैंने बच्चों को बोला। फिर एक और आया है अभी कि पेस मेकर जैसा डिवाइस होता है, बट दोज आर पेलिएटिव, वो 100% रिलीफ नहीं देते हैं आपको, एक 60-70% आपको बेनिफिट देते हैं। So what are some of the lifestyle changes which epilepsy might bring to a person's life? There are two ways to look at it. What lifestyle changes an epileptic should have, and what lifestyle changes what a lifestyle changes epileptic goes through. तो lifestyle changes epileptic goes through is like, सबसे पहले तो बहुत सारे इनिबिशन फैमिली सोसाइटी डाल देती है बच्चों में, स्पेशली आप ये नहीं करना, वो नहीं करना, यहाँ नहीं जाना। तो मैं कहूंगा कि इससे अच्छा उन्हें दवाई बराबर से दें, उनकी नॉर्मल सब कुछ चलने दे, तो उन्हें एक नॉर्मल जिंदगी जीने दे। चाहिए यह कि सिर्फ दवा समय से ले, नींद का ध्यान रखें, बहुत ज्यादा टीवी या मोबाइल या वीडियो गेम्स इस तरह से अवॉइड करें। हाई एल्टीट्यूड माउंटेनियरिंग या डीप डाइविंग, स्काई डाइविंग, स्विमिंग, ये थोड़ा अवॉइड करें। जिन्हें अटैक्स आ रहे हैं बहुत फ्रीक्वेंट, वो ड्राइविंग, बिल्कुल डाइविंग ना करें। हेवी मशीनरीज के साथ वर्क नहीं करें। ये सब रिस्ट्रिक्शंस तो जायज है, इसके अलावा बाकी कुछ भी नहीं। डाइट, लोग बोलते ये नहीं खाना, वो नहीं करना, ऐसा नहीं वैसा नहीं, तो वो बीमारी से जितना परेशान नहीं हुआ ना, हमारे रिस्ट्रिक्शन से परेशान हो जाता है। और फिर रिस्ट्रिक्शन से परेशान होते हैं तो अल्टीमेटली क्या बोलते हैं, हम दवाई भी नहीं खाएंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। बिल्कुल। तो अभी आपने कहा डॉक्टर कि मोबाइल से दूर रहना चाहिए, वीडियो गेम से दूर रहना चाहिए। तो हो सकता है सम चिल्ड्रन विल बी लिसनिंग एंड पेरेंट्स विल बी लिसनिंग इन, तो उसका क्या कनेक्शन है, एक बार आप इन अ लेमैन्स लैंग्वेज बता दीजिए। ऐसे कुछ एपिलेप्सी में, जैसे मैंने कहा, स्पेशली वो जनरलाइज्ड एपिलेप्सी में, ये जो फ्लैशिंग लाइट्स होते हैं या गेम्स में जो सीक्वेंसेस होती हैं, ये हमारे पीछे के ब्रेन को स्टिमुलेट करें, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रिकल करंट्स निकला, पीछे गया, वो स्टिमुलेट किया। स्टिमुलेशन से क्या, वहां शॉर्ट सर्किट्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इसीलिए ऐसे वीडियो गेम्स या फ्लैशिंग लाइट्स वाले गेम, स्पेशली अब शादियों में या डिस्कोथेक में, वो फ्लैशिंग लाइट्स होते हैं जहां ये चलता रहता है, तो ऐसे समय में उन्हें वो अटैक आ सकता है। तो वो अवॉइड करें, बाकी कुछ नहीं। और एक इंपॉर्टेंट है कि स्मोकिंग, अल्कोहल, टोबैको, जो भी एक्साइटोजेनिक ड्रग्स हैं, मेडिसिन हैं, वो सब भी अवॉइड करें। एंड एक बहुत कॉमन कंसर्न होता है कि जो मेडिसिन खाएंगे उसका कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं। दिस इज, मैंने ऑलरेडी कहा, सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिए अगर आप देखेंगे गूगल में जाके, ओके शक्कर खाऊंगा तो क्या होगा, इतने सारे साइड इफेक्ट देंगे। कल से आप शक्कर खाना बंद कर देंगे, फिर मैं गेहूं की रोटी खाऊंगा तो क्या होगा। हर चीज का कुछ प्लस है, कुछ माइनस है, अंदर जा रही है। तो वो दवाई है कि पॉइजन है, बहुत बड़े रिसर्च के बाद, कई सारे ट्रायल्स के बाद ये आई है। और कुछ कुछ दवाइयां 100 ईयर्स से हैं। अगर 100 ईयर्स से वो है, आज भी हैं, तो दे हैव मेडिसिनल प्रॉपर्टीज या गुड बेनिफिशियल प्रॉपर्टीज विच आर मच मोर देन सम हैजार्डस साइड इफेक्ट्स, साइड इफेक्ट्स कहूंगा मैं, हैजार्डस, है ना। और हम दे रहे हैं क्योंकि जरूरत है। अगर जरूरत ही नहीं होती तो किसी नॉर्मल इंसान को तो नहीं खिला रहे ना। तो जब दे रहे हैं तो डॉक्टर को पता होता है कि मैं ये मेडिसिन दे रहा हूं, इसके ये 4 चीजें मुझे वॉच रखनी है। तो वो जब नेक्स्ट विजिट में आते हैं, हम नॉर्मल क्वेश्चंस में वो पूछ लेते हैं कि इसमें से कुछ हो रहा है क्या, कैसे हैं, क्या है, तो वी नो। इसके अलावा सब कुछ गलत भ्रांतियां हैं और रेयर चीजें होती, कभी कभी रेयर चीजें हैं। क्रोसिन से भी ड्रग रैश हो सकता है, विच कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग समटाइम्स। तो रेयर चीजें नहीं पकड़ सकते हम, किसी को भी किसी चीज की रिएक्शन हो सकती है। दैट इज एन वेरी रेयर रिएक्शन विच कैन हैपन, वेरी, दैट इज एन अनफॉर्चुनेट सिचुएशन। बट 99% केस में हम उसी लाइन से चलते हैं। तो आपको चाहिए, कुछ भी, जब आप दवा ले रहे हैं, दवाई स्टार्ट हुई है, कुछ भी एबनॉर्मल चीजें आपको लग रही है, तो नेक्स्ट नोट कर लें। नेक्स्ट विजिट में आपको डॉक्टर को, आप अपने डॉक्टर को बताएं, कुछ चीजें वो बोल देंगे इससे नहीं है,
बाकी चीजें कुछ होगी स्पेसिफिक तो वो उस हिसाब से उसकी वो आपकी दवाइयाँ एडजस्ट करेंगे। खुद गूगल करेंगे तो आप गए काम से। बिल्कुल। So, doctor, before we conclude, what is the message you have for the people who are listening? मिर्गी पर मैं कहूंगा, किसी मिर्गी एक मस्तिष्क की आम साधारण बीमारी है मेरे लिए, मतलब कुछ भी नहीं है इसमें। ये बीपी शुगर से कई कई माइल्ड है, बहुत माइल्ड है। इसमें आगे लॉन्ग टर्म कुछ कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होने वाले। मेजोरिटी केसेस में ऐसा है, दवाई से 80% कंट्रोल हो जाएंगे और काफी लोगों की दवाइयां भी आगे जाके बंद हो जाएगी, डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज द कॉज ऑफ इट। एंड इवन इफ दे आर नॉट, मेडिसिन बंद नहीं हो रही बट वो दवाई से कंट्रोल हो गए हैं, तो वो अपनी नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं। प्रोफेशनली सब कुछ एडवांसेस, बच्चे पढ़ सकते हैं, आगे जा सकते हैं। गर्ल्स हैं तो दे कैन स्टडी, दे कैन बी होम मेकर, दे कैन बी वर्किंग वुमेन, दे कैन बिकम मदर, दे कैन प्ले ऑल द रोल्स, स्पेशली फॉर द फीमेल्स आई विल से, दे कैन प्ले ऑल द रोल विच एनीबडी एल्स कैन प्ले। हम सच बताएंगे, हम प्रॉपरली बताएंगे, हम पेपर्स देंगे। लगेगा तो ही कैन कम टू मी एज अ डॉक्टर, आई कैन शो देम दिस आर द रिकॉर्ड्स एंड चाइल्ड, दिस गर्ल इज डूइंग फाइन। मेल से ज्यादा फीमेल्स को प्रॉब्लम आती है ये, और काफी हद तक ये चेंज हुआ है। समय लगता है पेरेंट्स को, कभी 6 महीने, साल भर, बट यस, एंड दे आर इवेंचुअली हैप्पी आफ्टर दैट, बिकॉज दैट गर्ल डजंट कैरी द गिल्ट कि पेरेंट्स ने छुपा दिया। वो डर के, छुप के, रात को गोली खाती है, छुप के मिस कर जाती है क्योंकि सब लोग थे, फिर फिट आ जाता है। फिर वो सब भागते हैं, फिर कोई, बिकॉज फैमिली में किसी ना किसी को कभी ना कभी पता ही रहता है कि 10 साल पहले एक आया था। फिर वो शुरू होता है कि आप लोगों ने झूठ बोला, एंड देन इट स्टार्ट्स एंड देन इट ग्रोज कि दोनों फैमिलीज वो रह गए नीचे, ग्रूम एंड बॉय, दैट गर्ल एंड बॉय, वो कहीं छूट गया एंड कहीं और चला गया। सिंपल चीजें बताना है, झूठ क्यों बोलनी, बिल्कुल, झूठ किससे शुरुआत क्यों करना है इतने बड़ी चीज की। बिल्कुल। मैं बहुत बार बोलता हूँ कि हम कोई कार लेने नहीं जा रहे। जब मैं बॉयज को, गर्ल्स को भी बोलता हूँ, बॉयज को भी बोलता हूँ, सी यू आर टेकिंग अ पार्टनर एज सच, तो प्लस ले रहे हैं, माइनस ले रहे हैं, नोबडी इज 100। एंड हम कोई व्हीकल नहीं खरीद रहे कि बिना स्क्रैच, बिना डेंट, बिना ये। सी इट इज अलायंस एंड यू आर इंडिविजुअल। आपको पता है आप में क्या कमी है, तो सामने वाले में कुछ नहीं रहेगी, क्यों नहीं एक्सेप्ट करेंगे हम। सोच, सब जगह सोच का ही प्रॉब्लम है। पर बात संभव है, इजीली संभव है, बट जरूरत है हमारे लिए हमारा सामाजिक दृष्टिकोण बदलने की, हमारा नजरिया बदलने की। इस बीमारी की तरफ अगर हम देखने का नजरिया बदल देंगे ना, तो जो मिर्गी बाधित व्यक्ति है उसकी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर का जरूरत है, कुछ पलों के लिए या कुछ समय के लिए, बाकी उन्हें नॉर्मल ट्रीट करें। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर नीरज फॉर बीइंग ऑन एक संवाद। आपने बहुत सारी जानकारी दी है। मुझे उम्मीद है कि एपिलेप्सी अवेयरनेस में हमारा ये कंट्रीब्यूशन कुछ लोगों को हेल्प करेगा एंड पीपल विल बी एबल टू थिंक बियॉन्ड द मिथ्स। It was a pleasure talking to you. Thank you so much for being on एक संवाद। थैंक यू मैम। मैं कहूंगा कि हम वचनबद्ध है इस चीज के लिए। अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। ये स्टिग्मा किसी स्टेज पे, मतलब इट हैज टू गो, दिस डिस्क्रिमिनेशन हैज टू गो, एंड आई एम रियली थैंकफुल कि आपने मुझे आज इनवाइट किया। एंड यस, एटलीस्ट समबडी, इफ इवन 1% इज गेटिंग बेनिफिटेड बिकॉज ऑफ दिस, आई विल कंसिडर कि ये हम दोनों का भी एफर्ट सक्सेसफुल हो गया। थैंक यू मैम, थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू सर, नमस्कार, थैंक यू।